Hello students, welcome back. Today we are going to start part 3 of chapter 4, Strings in Python. This is the last part of this chapter. So today we are going to learn about some built-in functions of the string. As discussed in the previous chapter, built-in functions are the functions which are already provided in the Python library and they have a particular work. So today we are going to talk about some of the functions which will be working on the strings. The string built-in functions allow to easily modify and manipulate string. We can just do modification and manipulation in strings on the basis of these functions. First we have the len function. Len function returns the length of the string, and here this thing written in green is the syntax of the function. We have to type here len, and in the bracket we have to give the name of the string. Then we have is the function capitalize. The capitalize function returns the exact copy of the string with the first letter in uppercase. Uppercase means capital letter. जो भी आप string provide करेंगे वो आपकी as it is return होके आएगी, and उस string का जो बिल्कुल पहला letter है that will be the capital letter. Rest the whole string will be small. The syntax of capitalize function is string dot capitalize and parenthesis. जब भी आप कोई भी फंक्शन का नेम लिखते हैं तो ये पैरेंथेसिस देने इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे डिनोट दैट इट इज़ अ फंक्शन. ये str दिस इज द स्ट्रिंग. वट एवर जो भी आप वेरिएबल के अंदर किसी स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे, जैसे आपने a में स्टोर किया किसी स्ट्रिंग को तो आप यहाँ पे a देंगे. सो दिस इज द सिंटेक्स. नेक्स्ट वी हैव इज स्प्लिट फंक्शन. As the name suggests, split function breaks up the string at the specified separator and returns a list of substring. एक पूरी सबस्ट्रिंग में उसको अगर आपको ब्रेकअप करना है, एक स्ट्रिंग को अगर आपको सबस्ट्रिंग में ब्रेक करना है एट अ पर्टिकुलर सेपरेटर, देन वी यूज अ स्प्लिट फंक्शन. द सिंटेक्स इज स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट एंड इन द ब्रैकेट सेपरेटर एंड मैक्स स्प्लिट. सेपरेटर हियर इज it can be comma, it can be colon, or it can be any other symbol. But if any separator is not specified, then the space is considered as a separator. Separator and max split both are optional. You can give the value or it is your choice if you don't want to. Max split is defines the maximum number of split. How many splits you want in that particular string, that is defined by max split. The default value of max split is 0, and if any integer value n is given, suppose आपने value दी 5, then the string will split into n plus 1 string. आपने 5 दी तो वो string आपकी 6 में split हो जाएगी. Let us understand this practically. Now here I have a string good morning stored in the variable a. First of all, let us make the use of len function. I want to find how many characters are there in good morning. So I'll say len, and the name of the string is, the variable in which string is stored is a, and press the enter key. Now the answer coming is 12. How 12? GOOD, 4 characters. MORNING, 7 characters. 7 plus 4, 11, and 1 is the space. So what is the length of the string? 12. Which is our next function? Next function is capitalize. So we will say the syntax for capitalize was string dot capitalize. What is the name of the variable in which the string is stored? a. So we'll say a dot capitalize. Remember to put the parenthesis also. Now you can see the output here. Whatever was the string, same to same आपके पास आया है, जो लेकिन जो आपका first character है that has been changed to the capital letter, that is uppercase. Uppercase means capital letter and lowercase means small letter. Okay. Next was our split function. अब देखिए good morning के बीच में जो है वो space है. अगर यहाँ पे आप normally करते हैं तो आपका कैसे होगा? Let us check. A dot split. स्प्लिट हो गया ये गुड और मॉर्निंग. 2 आर्ग्यूमेंट्स थे आपके, एक सेपरेटर और एक मैक्स स्प्लिट, वो हमने नहीं दिया. तो उसका अभी हम एग्जांपल देखते हैं. इससे आपको समझ में आ गया कि जहाँ पे देखो आपका स्पेस आ रहा है तो वहाँ पे ये 2 स्ट्रिंग्स में डिवाइड हो गया. एक आपकी गुड हो गई और एक आपकी मॉर्निंग हो गई. लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल. सपोज आई से b इक्वल्स टू रेड
blue, orange and green. ठीक है, वी हैव टेकन दिस स्ट्रिंग। अब बीच में देखिए इन सब के कॉलन का साइन है, तो हमने कहा बी डॉट स्प्लिट। कहाँ पे इसको स्प्लिट करें? जहाँ पे आपका कॉलन का साइन है। ठीक है, और कितने स्प्लिट कराना चाहते हैं? सपोज हमने इसको 2 स्प्लिट कराने हैं, तो अगर आपको 2 स्प्लिट कराने हैं तो आपको 1 वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि वो इससे एक ज़्यादा लेता है। तो हमने लिखा बी डॉट स्प्लिट, ये कॉलन आपका सेपरेटर है, और मैक्सिमम स्प्लिट हम कितने कराना चाहते हैं वो है आपका। तो अब देखो इसमें ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग आपकी आ गई रेड, ठीक है, और एक आपकी आ गई ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन। कहाँ पे सेपरेट किया उसने? जहाँ पे आपका कॉलन का साइन है। ठीक है, अब इसको हम सिंपली अगर लिखें बी डॉट स्प्लिट विदाउट एनी वैल्यू, 1 सेकेंड, अभी बी हमारा चेंज हो गया था इसलिए इस तरह से आया। अब हमने दिया बी डॉट स्प्लिट। इसमें व्हाट वी आर मिसिंग इज, हमें यहाँ पे वो आपका जो सेपरेटर है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बी डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा इस तरह से कि यहाँ पे वो स्प्लिट करे। आप देख रहे हो ना कि स्ट्रिंग के अंदर हमारा ये कॉलन साइन है, तो यहाँ पे आपको सेपरेट कराना है, तो हमने इसको ऐसे दे दिया। ठीक है, अब देखो जहाँ पे भी हमारा कॉलन का साइन था उसके बेसिस पे ये 4 प्लेसेस पे स्प्लिट हो गया, रेड सेपरेट, ब्लू सेपरेट, ऑरेंज सेपरेट, ग्रीन सेपरेट। आ गया समझ में? ठीक है, इसके बाद अगर हम इसे और वैल्यूज में स्प्लिट कराना चाहते हैं, जैसे हमने दिया बी डॉट स्प्लिट, और कॉलन पे वी वांट टू स्प्लिट इट, और हमने इसके स्प्लिट कराने हैं इस तरह से, तो इसमें क्या आ गया, 4 में स्प्लिट हो गया, क्योंकि हमने 3 वैल्यू दिया तो 4 में स्प्लिट हो गया। अब हम इसमें 2 वैल्यू भी देके देख सकते हैं, बी डॉट स्प्लिट कहाँ पे हमें कराना है, कॉलन पे, और 3 स्प्लिट्स करानी है तो 2 देना पड़ेगा। अब देखो इसका आउटपुट, एक आपकी हो गई रेड, एक आपकी हो गई ब्लू, और ऑरेंज और ग्रीन जो है वो आपका कंबाइंड स्ट्रिंग में आया। वैल्यू हमने दी 2, मैक्स स्प्लिट वैल्यू इज 2, तो n+1 लेता है, द वैल्यू ऑफ n इज 2, 2 + 1 हो गया 3, तो 1 2 एंड 3। दिस इज द वर्क ऑफ द स्प्लिट फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। लेंथ फंक्शन विल गिव यू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कैपिटलाइज फंक्शन आपकी स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर जो है उसको कैपिटल करेगा, और जो स्प्लिट फंक्शन है दैट विल स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू द सब स्ट्रिंग एट द पर्टिकुलर सेपरेटर। अगर आप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्पेस पे सेपरेट करेगा, और मैक्स स्प्लिट जो भी आप वैल्यू देते हैं उतनी वो सेपरेट करेगा, मोर देन 1 वैल्यू। मतलब जो अगर आपने 1 वैल्यू दी है तो 2 आपकी स्प्लिट्स होंगी। जैसे हमने यहाँ 1 वैल्यू दी थी तो 2 स्ट्रिंग आई, 1 दिस एंड 1 दिस। हमने यहाँ पे 3 दी तो 4 आई, और 2 दी तो 3 आई। ठीक है, और अगर आप मैक्स स्प्लिट की कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसको 0 लेके चलेगा। क्लियर दिस थिंग? नेक्स्ट इज योर रिप्लेस फंक्शन। अब रिप्लेस फंक्शन का क्या काम होता है? एज seen from the name only, it replaces all the occurrences of the old string with the new string. Syntax सी string dot replace old comma new। पहले जो आपने string दी उसके प्लेस पे आप कोई नई string देना चाहते हो तो वो उसको replace कर देगा। Title converts the first character in each word to uppercase and remaining characters to lowercase। हर कैरेक्टर के फर्स्ट कैरेक्टर, हर वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा? अपर केस में, और बाकी के सारे कैरेक्टर्स आपके लोअर केस में। जैसे हमने अभी गुड मॉर्निंग लिखा था तो स्टार्टिंग में गुड का जी और मॉर्निंग का एम जो था दे बोथ वर स्मॉल, कैपिटलाइज किया तो जी कैपिटल हो गया, लेकिन एम आपका स्मॉल ही रहा। तो अगर आप टाइटल देते हो तो जी भी कैपिटल हो जाएगा और एम भी कैपिटल हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं। एंड द सिंटेक्स टू यूज द टाइटल फंक्शन इज string dot title। ओके, then we have is find function. Find function returns the lowest index of the substring if it is found on string, in the string, if not found then returns -1। find function जो है वो find करता है किसको? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा hello, hello में आपको e find करना है कौन सी पोजीशन पे है, तो उसकी पोजीशन आपको रिटर्न करेगा। अगर उसे नहीं मिल रही है तो -1 रिटर्न करेगा। लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है और उसमें e जो है वो काफ़ी बार आ रहा है, तो उस केस में पहली बार जहाँ ई आ रहा है वो पोजीशन आपको रिटर्न की जाएगी। अब इसके अंदर द सिंटेक्स इज string dot find सब स्टार्ट और एंड। अब ये सब स्टार्ट और एंड क्या होते हैं?
सब इज द सब स्ट्रिंग जिसको आपको सर्च करना है स्ट्रिंग में। स्टार्ट इज द स्टार्टिंग पोजीशन वेयर सब नीड्स टू बी चेक्ड। स्टार्टिंग पोजीशन आपकी कोई यहाँ पे वैल्यू होगी 1 2 3 जहाँ से आपको स्टार्ट करना है चेक करना, और एंड आपकी एंडिंग पोजीशन है जहाँ तक आपको चेक करना है। तो स्टार्ट और एंड अगर आप दोनों देते हो तो उनके बीच में वो चेक करेगा। क्लियर? लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस with the exam. Now see, I have the same string a equals to good morning. अब I want कि in place of good some other string should come. जैसे कि I want good के place पे है cheerful, तो हम क्या लिखेंगे a dot replace and सबसे पहले आपको लिखनी है old string. old string आपकी क्या है? good. और ये ध्यान रखना कि जब भी आप string लिखते हो put the double quotes और single quotes, otherwise it will create an error. अब good के place पे आपको क्या लिखना है? cheerful. ठीक है, एंड क्लोज द पैरेंथेसिस। अब देखो आ गया, यहाँ पे चेंज हो गया, पहले गुड मॉर्निंग था, अब आपका चेंज होके आ गया चेयरफुल मॉर्निंग। क्लियर दिस थिंग? इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, इसमें हम रिप्लेस इस तरह से भी कर सकते हैं कि अभी आपने जो रिप्लेस किया था वो पूरे वर्ड को रिप्लेस किया था, तो अभी अगर हम रिप्लेस करना चाहें एक पर्टिकुलर लेटर को तो वो भी आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा a डॉट रिप्लेस, मुझे o के प्लेस पे u करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे o, that is the old string. I want to replace it with a new string, that is u. So I have written here u and press the enter key. Now you can see here it is saying good morning. जहाँ पे भी o था, good में 2 places पे था तो it has been replaced by 2 u's, and morning में 1 place पे था, it also has been replaced by 1 u. क्लियर होगी इतनी चीज़ की स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें रिप्लेस करना है हम वर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर हम किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहें दैट ऑल्सो कैन बी डन। नेक्स्ट आपका है टाइटल फंक्शन। टाइटल फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके वर्ड्स हैं उसके फर्स्ट कैरेक्टर जो है सबका कैपिटल हो जाएगा, a डॉट टाइटल। ओके, नाउ यू कैन सी गुड का आपका g भी कैपिटल हो गया और मॉर्निंग का आपका m भी कैपिटल हो गया। क्लियर दिस थिंग? अब देखो इसमें हमने यूज किया फाइंड फंक्शन, a डॉट फाइंड स्मॉल g। अब यहाँ गुड मॉर्निंग में जो g की पोजीशन है दैट इज 0, तो इट हैज गिवन 0। लेकिन अगर हम करें a डॉट फाइंड कैपिटल G, इज कैपिटल G देयर इन दिस स्ट्रिंग? नो, इट इज नॉट देयर। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर स्ट्रिंग के अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर या वर्ड नहीं है तो उस केस में आपका क्या आंसर आएगा? -1। अब मान लो मुझे o फाइंड करना है। अब देखो o जो है आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है और सिक्स्थ पे है, तो इस केस में इसका आउटपुट क्या रहेगा? a डॉट फाइंड और हमने यहाँ पे दे दिया o। अब देखो इसका आउटपुट क्या है? 1। मतलब कि पहली बार वो जिस पोजीशन पे आया वो आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, अगर सपोज मैंने दिया a डॉट फाइंड o, कहाँ से फाइंड करना स्टार्ट करे वो? 0 1 2, मान लो वो 2 से स्टार्ट करे, 2 से मैं चाहती हूँ कि वो स्टार्ट करे चेक करना, तो इस केस में आपका आउटपुट क्या है? 2 पे ही उसे मिल गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि वो 3 से स्टार्ट करे, तो पहले तो वो 3 पे चेक करेगा, अगर 3 पे मिल जाता है तो इट विल गिव यू द आउटपुट एज 3, और अगर 3 पे नहीं मिल रहा तो 3 के बाद वाले कैरेक्टर्स को चेक करेगा, उनकी पोजीशन को। ठीक है, अब हमने ये दिया, इस तरह से हमने दिया 3, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आया आपका? 6। कैसे आया? यहाँ से पोजीशन देखो, 0 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे है ओ। अब 6 इसीलिए आया, मतलब अगर आप कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते हो तो आपको वो पोजीशन बताएगा जहाँ पे आपका कैरेक्टर पहली बार आया, और अगर आप यहाँ पे कोई स्टार्टिंग वैल्यू स्पेसिफाई करते हो देन इट विल चेक फर्स्ट एट दैट पोजीशन, आफ्टर दैट इट विल चेक द कैरेक्टर्स टू द राइट साइड। क्लियर दिस थिंग? इसी तरह से अभी हमने सिर्फ एक कैरेक्टर को सर्च किया, हम वर्ड को भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला a डॉट फाइंड एंड हमने लिखा यहाँ पे गुड, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? गुड का फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो 0 है, इसलिए उसने आउटपुट दे दिया आपका 0। अगर मैं यहाँ पे करूँ a डॉट फाइंड मॉर्निंग, तो यहाँ पे आपकी जो मॉर्निंग है उसका फर्स्ट जो कैरेक्टर है m, उसकी पोजीशन क्या है? 0 1 2 3 4 एंड 5। m कौन से प्लेस पे है? 5 पे है, तो इसलिए यहाँ पे इसको इसने दिया आपको 5। अभी हमने एक और चीज़ करनी है, एंड पोजीशन लेके देखते हैं। अब जैसे हमने दिया a डॉट फाइंड, सपोज हमें फाइंड करना है r, और सपोज हमें फाइंड करना है कहाँ से कहाँ तक? सपोज 2 से फाइंड करना है और सपोज ले लेते हैं 8 तक। ठीक है,
तो ये आपको दे देगा 7। 2 पे क्या है हमारा 0 1 2 O 3 4 5 6 7 8 N। तो ये क्या कर रहा है, ये आपके इस O से लेके और इस N तक सर्च करेगा। तो जिस पोजीशन पे इसको R मिल जाएगा इट विल गिव यू द आंसर एज 7। N को चेक कर लेते हैं, A डॉट फाइंड, सपोज हमने दिया N और कहाँ से कहाँ तक चेक करना है, सपोज हमें 4 से चेक करना है और 10 तक, तो इसने आपको दिया 8। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे इसमें 2 n है लेकिन पहली बार n जो है वो 8th पोजीशन पे आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग यू 8। क्लियर दिस थिंग? इस तरह से आपको फाइंड फंक्शन को यूज करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टेट एंड ट्रांजिशन। अब स्टेट और ट्रांजिशन क्या होता है? स्टेट इज वन ऑफ द पॉसिबल इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विच इज कॉज्ड बाय सम एक्सटर्नल इनपुट और सम इंटरनल एक्शन। स्टेट क्या होती है? अब आपने साइंस में पढ़ा है बेसिकली स्टेट क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, या तो वो रेस्ट स्टेट पे होगा या वो मूवमेंट स्टेट पे होगा, मतलब या तो वो रुका हुआ है या फिर वो मूव कर रहा है। इसी तरह से एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिस तरह से उनका सेटअप होता है कि वो उस टाइम पे उनकी स्टेट क्या है, आइदर दे आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, विच इज कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल इनपुट्स और सम इंटरनल एक्शन, उसे हम बोलते हैं स्टेट। एंड ट्रांजिशन क्या होता है? चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इनपुट और सम इंटरनल एक्शंस। मान लीजिए कोई बॉल अगर रेस्ट स्टेट में है और आप उसे किक करते हो तो वो मूवमेंट स्टेट में आ जाएगी, तो उसकी जो रेस्ट स्टेट थी उससे उसकी मोशन में क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ। इसी तरह से कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर उसको हम स्विच ऑफ या स्विच ऑन करते हैं तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करेगा ड्यू टू सम एक्सटर्नल इनपुट और सम इंटरनल एक्शन, सो दैट is referred to as the transition. Next we have is the state transition diagram. अब state transition diagram आपका क्या कहता है? Basically it describes all the states that a computer system can undergo. एक कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जितनी भी स्टेट्स हो सकती हैं, it describes those state and it can undergo along with the events under which the computation system behaves. इवेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं एंड हाउ द कंप्यूटेशन सिस्टम बिहेव्स एंड चेंजेस द स्टेट, दैट इज बीइंग डिपिक्टेड बाय द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. नाउ द पावर ऑन स्टेटस ऑफ द इलेक्ट्रिक स्विच इज टर्न्ड एज द ऑन स्टेट एंड द पावर ऑफ स्टेटस इज स्टेटेड एज द ऑफ स्टेट. एक स्विच अगर ऑन रहता है तो उसकी स्टेट क्या मानी जाती है? ऑन स्टेट. और अगर ऑफ रहता है तो उसकी स्टेट क्या होती है? ऑफ स्टेट. नाउ इन द डायग्राम यू कैन सी हियर S0 से S1 एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन हो रही है, दैट इज चेंजेस हो रहे हैं. तो ये आपका शो करता है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. और ये जो आपको एरो दिख रहा है, दीज आर द ट्रांजिशंस एंड इट कैन बी डन बाय एनी ऑफ द प्रोसेसेस. पहले S0 से S1 में चेंज हुआ और फिर अगेन इट इज़ गेटिंग बैक चेंज इन फ्रॉम S1 टू S0 और ये प्रोसेस इसी तरह से आपका कंटिन्यू होता है. नेक्स्ट वी हैव इज़ द असाइनमेंट पार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज find the output of the following. There is a string green vegetables stored in the variable word and it says print word dot find G2. G की पोजीशन क्या है? 0. आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? 2. 2 पे क्या कैरेक्टर है? E. तो आप E से चेक करना स्टार्ट करेंगे कि उसके बाद G आपका कौन सी पोजीशन पे आ रहा है. 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स आर देयर. तीनों में आपका फाइंड फंक्शन लगा हुआ है. तीनों को ध्यान से करिए. 2 में आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है और लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट में आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों वैल्यूज़ हैं. Question number 2 says write a program that reads a line, count the words and displays how many words are there. लाइन को रीड कराना है तो आपको यूज़र से इनपुट लेना है यूजिंग द इनपुट फंक्शन. काउंट कराना है तो आपको एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए. काउंट ले सकते हो या ABC ले सकते हो आप. उसको स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज़ कराएंगे और फिर आपको काउंट कराना है तो आप क्या करेंगे? यूज़र से इनपुट फंक्शन से इनपुट कराया, काउंट वेरिएबल लिया, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर आपको पता है कि वर्ड कहाँ पे एंड होता है? जहाँ पे स्पेस आता है. और बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर स्पेस किस में होता है? स्प्लिट फंक्शन में. तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसे एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर देंगे एंड देन फॉर लूप लगाने के बाद आप एक एक वर्ड को काउंट करते जाएंगे और काउंट या जो भी आपने वेरिएबल लिया फॉर काउंटिंग उसको आपको 1 इंक्रीज़ करना है. ठीक है, ट्राई टू डू दिस. Try this once and if any problem is there I am there to help you. Now question number 3 says explain the function split with the example. Split function की अभी हमने बात की and we have discussed it in the video also. उसके बारे में जितने भी examples हैं या जो भी आप example खुद से बना सकते हो that you have to write down along with its working.
इट इज़ वेरी इजी टू राइट डाउन। स्प्लिट फंक्शन में बेसिकली हमने पढ़ा था कि एक आपका मैक्स स्प्लिट होता है कि कितने स्प्लिटिंग कराने हैं और कहाँ पे आपको स्प्लिट कराना है। तो दैट होल थिंग यू हैव टू राइट डाउन अबाउट द split function. Okay, now we have is question number 4. Find the output of the following. Here is the string work hard stored in the variable word, and in the next line we have a variable result which stores the output of the find function. That is, find function का क्या work होता है? To find the position of that particular character or substring from the original string. तो ये जो भी value return करेगा वो आपकी result variable में जाएगी. This is a print statement. Substring work found at index. This is written in double quotes as it is will come. और ये रिजल्ट क्या प्रिंट करेगा? जो आपकी पोजीशन की वैल्यू है. सिमिलरली एक और हमारे पास वेरिएबल है सेम रिजल्ट, वर्ड डॉट फाइंड. अब यहाँ पे जो आपको स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है दैट हैज़ बीन चेंज. तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, एंड देन आपको ये रिजल्ट प्रिंट कराना है. नाउ इट सेज इफ वर्ड डॉट फाइंड पवन नॉट इक्वल टू -1 देन प्रिंट कंटेन्स गिवन सबस्ट्रिंग, एल्स प्रिंट डजंट कंटेन गिवन सबस्ट्रिंग. आपको पता है फाइंड फंक्शन -1 कब रिटर्न करता है? जब उसके पास वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग नहीं होती है एंड इट इज़ नॉट एबल टू फाइंड. तो नॉट इक्वल टू -1 का मतलब है कि वहाँ पे उसे वो स्ट्रिंग मिल गई. तो अब आपको चेक करना है कि मेन स्ट्रिंग के अंदर ये स्ट्रिंग है या नहीं. अकॉर्डिंगली दोनों प्रिंट स्टेटमेंट में से आपका एक प्रिंट स्टेटमेंट होगी जो आपके आउटपुट में आएगी. Then we have his fifth question. Write the statement in Python to replace all the occurrences of the letter A in the string with star in global warming. आपके पास एक स्ट्रिंग है ग्लोबल वार्मिंग, जहाँ पे भी इसमें A है वहाँ पे आपको रिप्लेस करना है स्टार से. दिस यू कैन डू वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस फंक्शन. Then we have is question number 6 which says input the string my school, write a statement to partition the string at the occurrence of letter H. स्प्लिट फंक्शन हमने पढ़ा था. पार्टीशन जब भी करना होता है तो हम स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं. एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर माई स्कूल स्ट्रिंग को आपको स्टोर करना है. देन आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है. आपको यहाँ पे कहाँ स्प्लिट करना है? लेटर एच पे. जब हमने स्प्लिट फंक्शन का यूज़ किया था तो हमने सिंबल्स यूज़ किया था. लाइक आई टोल्ड यू, कॉमा पे हो सकता है, कॉलन पे हो सकता है, सेमी कॉलन पे हो सकता है. तो इस केस में आपको लेटर एच लेना है एंड दिस विल बी स्प्लिटेड. सेवेंथ क्वेश्चन इज ऑल्सो यूजिंग द स्प्लिट फंक्शन. इंस्टीट्यूट को आपको स्प्लिट करना है एट द अकरेंस ऑफ लेटर टी, सेम एज इट इज. क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग. आपको यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है, काउंट करना है. तो काउंट करने के लिए आप क्या करेंगे? एक वेरिएबल लेंगे काउंट, जिसको वैल्यू दे दोगे आप 0. देन आपको नंबर ऑफ वॉवल्स करने हैं काउंट. तो वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. इस केस में आपको कैपिटल और स्मॉल दोनों लेने हैं सिंस पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो इस केस में सबसे पहले आप एक काउंट वेरिएबल 0 लोगे और इनपुट फंक्शन की हेल्प से आपको यूज़र से एक स्ट्रिंग या लाइन इनपुट करानी है. एंड देन आप उसमें फॉर लूप चलाएंगे कि जब तक उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं या वर्ड्स हैं. देन यू हैव टू चेक इफ़. उसके बाद आप इफ़ स्टेटमेंट लेंगे कि इफ़ आई इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू और कैपिटल ए ई आई ओ यू, तो उस केस में आपका जो काउंट वेरिएबल है वो +1 होता रहे एंड देन लास्ट में आप उसे प्रिंट करा देंगे. ट्राई दिस क्वेश्चन. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 हियर. फिल इन द ब्लैंक्स. बाय मिस्टेक it has been written 10 and here are the 2 fill-ups, so you have to just write down the answers of this one. The dash method returns the lowest index of the substring if it is found in the given string. कौन सा फंक्शन है? मेथड फंक्शन एक ही बात होती है. कौन सा फंक्शन है ऐसा स्ट्रिंग का जिससे आपको उसकी लोवेस्ट इंडेक्स यानी कि सबसे पहली पोजीशन, लोवेस्ट इंडेक्स वैसे बिल्कुल जो उसकी कम इंडेक्स वैल्यू है वो, और वो वही होती है जो उसकी सबसे पहली अकरेंस होती है. तो कौन से फंक्शन से आपको उसकी पोजीशन मिलती है? लोवेस्ट इंडेक्स. एंड सेकंड इज डैश फंक्शन रिटर्न्स द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट लेटर इन अपर केस. ये भी हमने डिस्कस किया था. दोनों के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं. दे आर वेरी इजी. Try all the questions and do them in your notebooks.